Overthinking and anxious thought can literally ruin your life. As for me, I'm the huge overthinker and used to think that what other person is thinking about me right now, and it just that I created in my mind okay, what they're thinking about me. And the thing is that things never happen. Just we create in our minds. For example, if a person is mad at me and I've been thinking why they are mad at me, why, just we create in mind the hurdles and things and that we just create in my mind, and just think over it and overthink, just think over it. The thing is that things never happen. Just literally, it's me and my thoughts. So guys, um, आज जो है मैं आप आज की वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ टू stop overthinking and change your life. Thinking can lead to such harsh consequence that I learned to how stop overthinking. And now guys, in this video I'll show you how you can stop overthinking and trust trust the life and start living your life. Guys, I welcome you in my new vlog. So I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते होंगे. प्लस आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू all for your love and support you've been showing me throughout my videos. और आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी. और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं और मुझे बोलते हैं कि वीडियो बनाने के लिए, और मैं अब कोशिश करती हूँ कि आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ टाइमली. और आज की भी मेरी वीडियो है वो भी आप लोगों के लिए है कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. Overthinking is a huge problem of today, and I'm literally going to tell you how to stop overthinking and start living your life without overthinking. जो पहली थिंग है आपको अंडरस्टैंड करने की वो ज़रूरत है, नो वन नोज़ यू. एवरी पर्सन हैव डिफरेंट विजन ऑफ यू इन देयर माइंड, and that's the thing, literally thing. For example, if someone is looking at me, they will think wow, she's like amazing, she saved my life and everything. And the other person जो मुझे देख रहा है वो सोचेगा भाई ये कौन है, आई हेट हर, आई लिटरली she ruined my life in everything. Because every each person have different perspective of you in their mind. It's all about the mind that made us think that this third person or second person, what they are thinking about us, that literally make us overthink. So the first thing is that no one knows you. You have a clear version of you, एंड डोंट थिंक कि आपके बारे में वो क्या सोचता है, क्या करता है. जैसे कि आप सोच रहे हो कि यार मेरे बारे में तो ये बुरा ही सोचता है, ये कुछ ऐसे ही सोचता है. यू कैन यू कांट गो इन अदर्स माइंड. आप लिटरली नहीं जा सकते उनके माइंड में, और नहीं ही आप जान सकते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है. द थिंग इज़ दैट कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं. Really, that would be really foolish of you कि ये थिंक करें कि यार ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है. मैंने तो इसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया. It's because it's all about our mind that we overthink about it and think about it कि यार ये लिटरली पर्सन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों कर रहा है. यू डोंट नो कि ये इनका अलग ही पर्सपेक्शन है, अलग चीज़ है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस विद यू. हर किसी के एक्सपीरियंस आपके साथ अलग होंगे, और ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है.
to stop overthinking. Start to understand that you don't know that person or the person don't know about you. So this perspective literally help you to stop overthinking, and that's the big achievement, first big achievement that help you to stop overthinking. Another thing is voice your thought in the moment. Literally in the morning my sister said that I admire your that thing, and it literally makes my movement. And the thing is that कि I'm not that person जो easily offend हो जाती है और करती है, लेकिन बात ये आती है कि आई लिटरली मेक माई वर्ड्स एंड माई पॉइंट इन दैट थिंग कि जो चीज़ मुझे हर्ट कर रही है अगर वो पर्सन वो कर रहा है तो आई लिटरली मेक कि यार ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, प्लीज़ आप ये नहीं करें। मैं अपना पॉइंट उनके सामने लाजमी रखती हूँ कि लिटरली ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, आप मत करो। और बात यही आ जाती है कि अपनी वॉइस ऑफ थॉट करने का कि अगर आप जो है वो किसी को लाइक नहीं करते, रोकते नहीं हैं कि वो अगर आपको इंसल्ट कर रहा है या आपको ऑफेंड कर रहा है, आप उसको रोकते नहीं हैं, तो ये खुली आज़ादी होती है कि आप उनको बोल रहे हैं कि यार आपने जो करना है करो और हम नहीं कर रहे। लेकिन एट द एंड जब हम अकेले बैठे होते हैं तो हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, वी यूज टू ओवर थिंक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट इट कि लिटरली यार उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया और मैं कुछ नहीं कर पाई। ये आपकी गलती होती है अगर कोई बंदा आपको किसी भी फॉर्म में हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका काम है कि आप उसको रोकें। लिटरली आप उसको स्टॉप करें और उससे बोलें ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस टू मी। एंड लिटरली मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं कोई भी ऑफेंड नहीं रखती और ना किसी को इतना हक दूँ कि आप के बारे में वो कुछ बोले या आपको हर्ट करे। सो लिटरली आई कैन नॉट, you have to promise yourself that I cannot afford my brain to be filled with unnecessary nonsense thought that can let me think of it and overthink about it. um, I cannot literally get to the bed with with someone fighting and किसी के साथ झगड़ा करके और बहुत सारी unnecessary नॉनसेंस थॉट अपने माइंड में लेकर आप जाएं। क्योंकि एक बेड होता है लाइक जहाँ पे आप पीसफुली सोते हैं, तो आपको उस टाइम अपनी थॉट्स को बिल्कुल साइड पे रखकर पीसफुली अपने आप को रखना होता है। अपनी थॉट्स को निकालने से को एक काम करना है, वो ये है कि आप अपने ब्रेन को ये समझाएं कि आई लिटरली कैन नॉट अफोर्ड दीज अननेसेसरी थॉट्स। आपको पीसफुली अपने माइंड को पीसफुल करना है बिफोर गोइंग टू बेड, सो दैट आप एक पीसफुल अच्छी नींद लें और फ्रेश जब मॉर्निंग हो तो आप फ्रेश उठें। रियली देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लाइक अपना ओपिनियन किसी के सामने रखना, ये कोई गलत बात नहीं है। और बस आपको ये काम करना है कि आपने ओवर थिंक नहीं करना किसी की भी बात पर, क्योंकि एज यू नो एवरी पर्सन हैज़ different perspective. So the third thing you can do to stop overthinking is that you can write it down on a paper. What you've been thinking about, जो भी आप सोच रहे हैं आप उसको एक पेपर पे लिख के, लाइक पेपर पे लिख लें या कुछ भी आप कोई भी ऐसा काम कर लें लाइक कोई आर्ट, पीस ऑफ आर्ट या कुछ इस तरह से। लिटरली आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आप को वो आप अपने इमोशन को उसके अंदर डाल दें और जिससे आपको हेल्प होगी कि आप रुकें अपने आप को कि ओवर थिंक करने से, और लिटरली दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो लिटरली व्हाट वी आर फेयरिंग फ्रॉम, कि हम किस चीज़ से डरते हैं, हम क्यों ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को जबकि वो चीज़ कभी होनी ही नहीं है। जस्ट अपनी थिंकिंग के उस पे बुनियाद पर हम इस चीज़ सोच लेते हैं कि यार ये
this person is not literally not thinking what they're thinking about us, और कि ये क्या सोच रहा है, क्यों ऐसे बात की, क्यों ऐसे हुआ। ये चीज़ें जो हैं बस हमारे दिमाग में हम अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को हम अपने इस डर को निकालें अपने अंदर से और फैक्ट्स पे बिलीव करें। फैक्ट्स ये चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट आंसरिंग अस, तो फैक्ट ये है कि ही माइट बी बिजी, वो बिजी होगा जिसकी वजह से वो हम आंसर नहीं कर पाया, या ये जॉब हमें नहीं मिली, कोई और किसी बंदे को मिल गई है, या कुछ ऐसे हो गया है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये फैक्ट है, ना कि ये कि हम उसको ओवर थिंक करना शुरू कर दें कि और नेगेटिविटी की तरफ चले जाएं कि ये चीज़ जो है भाई कुछ ना कुछ शायद हम कैपेबल नहीं है, या वो हमसे बात नहीं करना चाहते, या कुछ इस तरह से। क्योंकि बात वही आती है कि हम उनके दिमाग में नहीं जा सकते और ना ये सोच सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जब तक अनलेस और अनटिल यू हैव बीन एक्सपीरियंस विद देम। जब तक आप उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं होता आप किसी के बारे में भी नहीं कर सकते। इसी तरह वो भी हमारे बारे में डिफरेंट अपनी राय रखते हैं। और यही बात है कि आप ओवर थिंक को इस तरह कम कर सकते हैं कि आप उसके बारे में इतनी इतनी ना सोचें कि यार बस फैक्ट्स में बिलीव करें कि ये चीज़ अगर नहीं हुई तो इट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ अस, कि ये हम एक मेरी अच्छाई के लिए कि अगर ये चीज़ नहीं हुई या क्या दूसरा बंदा क्या सोचता है आपके बारे में, क्या करता है, इससे आपको लिटरली कोई वो नहीं होनी चाहिए। व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज ट्रस्ट द Allah's process, because he knows what is better for you and he will like वो आपके लिए जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। सो जो बात यह है कि आपको हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए अल्लाह पे कि वो जो भी करते हैं वो आपके अच्छे के लिए करते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बात ये समझने की है कि यू आर नॉट फेलियर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, इफ़ एनी पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग यू, और कुछ लाइक आपको पसंद नहीं करते हैं कुछ, आपके बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, हम उसकी सोच को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपनी पॉजिटिव साइड और अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर हम उसको चेंज होने पर मजबूर कर सकते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी हम ऐसे डेवलप करें कि उनको चेंज होने पे वो कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि आप अल्लाह के प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, अल्लाह अपने बंदों के लिए अच्छा ही करता है। सो जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग और ये मत समझें कि आप फेलियर हैं। यू कैन डू मच मोर देन दैट। आपको बस ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना किसी भी चीज़ पर। बस आपने ये याद रखना है, मेरी चीज़ें याद रखनी है कि आपने नो वन नोज़ यू, ठीक है? आपको कोई नहीं जानता, ना आप किसी को जानते हैं कि व्हाट दे बी थिंकिंग अबाउट यू, या आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट इट। सेकेंड थिंग ये है कि आप अपना ओपिनियन लाजमी रखें चीज़ों में। थर्ड थिंग, आप अपने आप को ऐसे लाइक लिटली अपने आप को राइट डाउन कर लें कोई चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही है, और बस उसको वहाँ तक ही रहने दें। अब वो अपने दिमाग में उसको घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ थिंग कि आपको सिर्फ अल्लाह के अलावा और किसी का फियर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और किसी भी इंसान कोई भी इस तरह का नहीं है कि आप उसको उससे फेयर करें या डरें या कुछ भी, ठीक है? और कोई भी बात से डरने की, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को मतलब लाइक अल्लाह के प्रोसेस पे ट्रस्ट रखें और अपनी काबिलियत, अपनी वर्थ, अपनी चीज़ों को हाईलाइट करें कि आप में क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। और आई नो कि यू गाइस लिटरली आर अमेजिंग। आप लोग कोई ना कोई अमेजिंग एबिलिटी अपने पास रखते हैं, उसको बस आपको शार्पन अप करने की ज़रूरत है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहूँ।
और प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो एक कैसी लगी। और कमेंट मुझे कोई, अगर आपने कोई और वीडियो भी लाइक इस तरह से कोई रिलेटेड, आपको कोई एडवाइस या कुछ भी ऐसा चाहिए और आप उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मैं लिटरली आई एम गोइंग टू मेक दैट वीडियो फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।